Hello dear students, in this lecture chapter name is Control and Coordination, which is chapter number 9 from 12th Science Standard. And dear students, to explain you about the nervous system in the lower type of living organism. Dear students, unicellular living organism, as you are well familiar, like Hydra and the Planaria belonging to the different phylum like Porifera and the Cnidaria. So dear student, the example of all that type of lower type of living organisms we'll see here with their nervous system. Unicellular living organisms, they show the simple life processes. Multicellular living organism shows the complex life processes. So as you are well familiar, living organism with the lower type of cellular structure, they are unicellular because their body is made up of only one cell, and they show very simple processes including the nervous system too. Yeah students, as you know, the plants and animals these are the two different great category of the living organism. Plant shows the chemical signals, and phototrophs are the one of the most important example or good example of that chemical signals, while the animal shows the chemical as well as the electrical signals, and reflection is one of the most important example of that nervous system or their response to the climate. So you can see here diagrammatically environmental stressors, it it is received as a sensory impulse by the sensory system of the living organism, and it is received by the nervous system, as that nervous system is having the nerves, sensory nerves, and doesn't matter that stressor or that sensation is from outside or from inside. So you can see here, from the outside in the yellow color and from the inside in the blue color at the top, there is some sensory responses receiving by the nervous systems, sensory nerves, and then different types of hormones are there to play their important role for responding to the to that stimuli, particular stimuli. And endocrine system along with its endocrine glands produces different types of hormones, and likewise they produces neurohormones and perform the different activities, and likewise they behave likewise. Okay dear students, so these two systems nervous systems and endocrine system, they goes hand in hand and bring control and coordination with the different cells, tissues, organs and organ system. So dear students, nervous system और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिलकर पूरे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स सेल्स है, टिश्यूज़ है और ऑर्गन सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो आपको दिख रही है, गेस व्हाट इज़ इट. अगर आप इसको जूम करके अगर आपको मैं ये बताऊँ तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, और इससे आपको पता चल गया होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर. तो ये जो येलो कलर के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, ये एक्चुअली यस दे बिलोंग टू द फाइलम पॉरीफेरा, एंड ये लोअर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है. डियर स्टूडेंट्स, दे शो ओनली वन सेल्स, एक ही सेल इनके बॉडी में होता है, दैट्स व्हाई दे आर यूनिसेल्युलर. There is no tissue in their body because they cell do not the cell in the body of this porifera phylum, they do not unite, they are not grouped to form the tissue, because tissue is nothing but a group of cell. Various cells perform the different functions like digestion, respiration, excretion, etc., but a porifera lacking the nervous system. Yes dear students, आपने जो सुना है वो सही सुना है. पॉरीफेरा लैकिंग द नर्वस सिस्टम. पॉरीफेरा फाइलम में जो जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी एग्जांपल्स की दिखेगी आपको, उसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट मिलेगा आपको. उससे दे शो लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक दूसरा फाइलम आता है लोअर एनिमल में, फाइलम निडेरिया. तो इसकी एग्जांपल हाइड्रा है. आपने कई बार हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखी होगी, इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ.
हाइड्रा के अंदर जो है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, एंड विच शोज़ द नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन इसके पहले वाला जो पूरा का पूरा फाइलम देखे हमने, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। एंड इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स, स्नेडेरिया, और उसके बाद के जितने भी फाइलम है उसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और उस क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उनके पास नर्व सेल्स होते हैं और सेंसरी सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स फॉर्म्स टू नर्व नेट। ये जो नर्व सेल्स होते हैं वो दो नर्व की नेट बनाते हैं। इस तरह से इस डायग्राम में, ये हाइड्रा की डायग्राम है, और आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस तरह का जो नेटवर्क है, इसको नर्व नेट बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो नर्व नेट अभी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लेनेरिया में हाइड्रा नाम के एनिमल की एक अच्छी सी एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं। बोथ द नर्व नेट इन द हाइड्रा प्रेजेंट इन द मीजोग्लिया, एंड वन इज़ इन द एपिडर्मिस एंड अनदर वन इज़ इन द गैस्ट्रोडर्मिस। या स्टूडेंट, दोनों भी नर्व नेट जो है वो इसके मीजोग्लिया नाम के जो सेल होते हैं उसमें होते हैं, जिसमें से एक एपिडर्मिस में और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। ओके, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सेंसरी सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। नर्व सेल्स की अभी मैंने बात बताया कि नर्व सेल्स जो है वो नर्व नेट बनाते हैं, जिसकी डायग्राम भी अभी आपको बताया हाइड्रा में। और सेंसरी सेल क्या करते हैं, ज़रा उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन हम देख लेते हैं। सेंसरी सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी वॉल इन द टेंटैकल्स। इनके बॉडी में जो टेंटैकल्स होते हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे तो ये ऊपर में जो दिख रहे हैं आपको, इसको टेंटैकल्स बोलते हैं। ये टेंटैकल्स डियर स्टूडेंट्स, ये टेंटैकल्स में सेंसरी सेल्स होते हैं, और ये सेंसरी सेल्स का क्या फंक्शन है और बॉडी वॉल के अंदर ही सेंसरी सेल्स क्या फंक्शन करते हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन पहले हमने इसका लोकेशन देख लिया। ऑल द सेंसरी सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल द सेंसरी सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी वॉल्स इन द and in the tentacles. So neurons are not divided into sensory neurons and motor neurons, as these are the very simplest type of living organism and primitive type of living organism. That's why their neurons are not divided into sensory neuron and the motor neuron, as in our body neuron is divided into sensory and the motor neuron and mixed neuron also. But this is very primitive type of living organism. That's why their neuron, means their nerve cell, are not divided into sensory neurons, and activation of the sensory cells can take place at any point and impulse can be carried throughout the body in any direction. क्योंकि डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन की इसमें कोई टाइप नहीं है, सेंसरी सेल्स डायरेक्ट अलग से दिए हुए हैं, इसलिए ये जो सेंसरी सेल्स जो है वो किसी भी पॉइंट पर बॉडी के किसी भी इम्पल्स को, किसी भी मैसेज को जो है वो रिसीव करके कैरी कर सकते हैं, और बॉडी की किसी भी डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, कैचिंग ऑफ प्रे ड्यूरिंग द फीडिंग। अब ये अगर इसकी एक बढ़िया एग्जांपल ये है कि ये एनिमल है जो अभी फीडिंग कर रहा है, यानी अभी कुछ खा रहा है, फिर खाते खाते भी वो जो है अपने टेंटैकल से किसी का भी शिकार कर सकता है, प्रे कर सकता है। सो एक तरफ फीडिंग का प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ कैचिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इनके सेंसरी सेल ये काम कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा करके एक फाइलम है, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। टीनोफोरा, इट डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम। इसमें एक डिफ्यूज, टीनोफोरा फाइलम जो है उसमें एक डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट रहता है। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्लेनेरिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेनेरिया जो प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम को बिलोंग करते हैं, और प्लेटी मीन्स फ्लैट बॉडी वाले, हेलमिन्थ्स। तो एक प्लेनेरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके सबके ऊपर आई स्पॉट दिख रहा है, उसके नीचे एक छोटा सा ब्रेन दिख रहा है, और उसके नीचे आप देख रहे होगे दोनों साइड से नर्व कॉर्ड निकल कर आई है, और एक आपको दिख रहा है ट्रांसवर्स नर्व्स, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये दोनों को एक दूसरे से जॉइन की हुई है। तो इस तरह के आई स्पॉट के नीचे ब्रेन के साइड से दोनों साइड में नर्व कॉर्ड निकल कर आया है, और उसमें ट्रांसवर्स नर्व्स ने उनको जॉइन करके रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया की फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से, ये जो है इट इज़ द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इनवर्टेब्रेट्स में पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, जो प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम को बिलोंग करता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पाया जाता है, विच शो द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, देयर आफ्टर द सेफेलिक और द सेरेब्रल गैंग्लिया लाई इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, जिनके पास जो है सेफेलिक या सेरेब्रल गैंग्लिया जो है वो बॉडी के एंटीरियर रीजन में रहता है। फ्रॉम ईच गैंग्लिया,
ये जो सेरेब्रल गैंग्लिया है, यानी वो जो सेल का जो एक ग्रुप है जो बॉडी के एंटीरियर रीजन में, सामने वाले रीजन में प्रेजेंट है, उसमें से हर एक गैंग्लिया जो है इट अराइजेस 9 ब्रांचेस, उसमें से 9 ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हर एक में से जो है एंटीरियर पार्ट में जो सेंट्रल गैंग्लिया है, सेरेब्रल गैंग्लिया है, उसमें से 9 ब्रांचेस निकलती है। एंड फ्रॉम बिलो द गैंग्लिया अराइजेस इन अ पेयर ऑफ अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड VNC। और नीचे से जो है गैंग्लिया में से पेयर निकलती है एक नर्व कॉर्ड की, जिसको वेंट्रल, क्योंकि वेंट्रल साइड में है इसलिए वेंट्रल नर्व कॉर्ड उसको बोलते हैं। और ये जो VNC है, दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय ट्रांसवर्स नर्व्स और कमीशर। तो आपको दिख रहा होगा ये जो दो निकली है, ये जो ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू जो है एक दूसरे से जॉइंट है, इंटरकनेक्टेड है। एंड द पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस अराइजेस फ्रॉम द VNC। और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इसमें से पूरे बॉडी को कवर करने के लिए, पेरीफेरी यानी बाउंड्री को कवर करने के लिए जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई है, उसको बोलते हैं PNP, यानी पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस अराइजेस फ्रॉम द VNC। अ पेयर ऑफ अ फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर द आई आर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आइज़ है यानी फोटोसेंसरी स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली आई ये है, और ये फोटो सेंसेशन को जो है कैप्चर करता है। इस तरह से ये एक प्लेटीहेल्मिन्थेस वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लेनेरिया में, ये हमने देखा कि इस तरह से इसका नर्वस सिस्टम चलता है। या स्टूडेंट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, जैसे न्यूरल टिश्यू किसको बोलते हैं, और न्यूरोग्लियल सेल किसको बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स उसके देखते हैं, जैसे न्यूरॉन्स, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। एंड दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लेयर ऑफ द एक्टोडर्म। जैसे कि 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसमें से ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से निकलता है और वही उसी से बनता है। लेसर इन नंबर एज़ कम्पेयर टू द न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल के कंपैरिजन में ये कम नंबर में होते हैं, लेस नंबर में होते हैं। एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स न्यूरॉन इसकी एग्जांपल है। उसके बाद न्यूरोग्लियल सेल, डियर स्टूडेंट्स, किसको बोलते हैं, दे आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने देखा न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम के फंक्शनल सेल है, स्ट्रक्चरल सेल है, पूरा नर्वस सिस्टम उसी से बना है। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल जो है वो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले सेल हैं। एंड दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म, ये भी एक्टोडर्म से निकलते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, दे आर द ग्रेटर इन नंबर एज़ कम्पेयर टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से ये बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं, इनकी जो नंबर्स होते हैं न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूरॉन्स इसके कंपैरिजन में कम होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो एपेंटाइमल सेल्स और श्वैन सेल और माइक्रोग्लिया सेल जो है, ये इसके एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखा हमने न्यूरॉन्स के बारे में और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।